हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग गुड एट योर होम्स. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज टॉपिक, आज मैं दो पंक्तियों के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ और वो इस प्रकार से हैं. खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से आकर पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, बता तेरी रज़ा क्या है. यानी हमें अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि भगवान भी हमसे आके पूछे कि आपको क्या चाहिए. और मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है, मैंने पहले भी कहा था. तो मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी. तो इसी के साथ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ क्लास 11th इन ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज़ breathing and exchange of gases, or we can say human respiratory system. So my dear student, as we know, when we talk about breathing and respiration, these terms are used very commonly. The oxygen is utilized by the organisms to indirectly, we can say, break down the nutrients molecules like glucose to release carbon dioxide and derive energy. And the process of exchange of oxygen from the atmosphere with the carbon dioxide which is produced by the cell is called breathing. Commonly we call it as respiration, or we also call it as cellular respiration. So respiratory organs, different organisms, we know that there is a lot of diversity in on this planet earth. चारों तरफ बहुत ज़्यादा विविधता है, चारों तरफ अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं. तो हर किसी की एनर्जी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है. जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि स्पॉन्जेस, एस्कॉन, साइकॉन, सीलेंट्रेट, हाइड्रा वगैरह, फ्लैट वॉर्म्स, आपको पता है फ्लैट वॉर्म जो कि डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेनेड होते हैं, जैसे कि फैसियोला हेपेटिका, टेनिया सोलियम. Exchange of oxygen with carbon dioxide by the simple diffusion over their body surface. Earthworm, we know they have moist skin, so they will also, simple gases exchange will takes place through the skins. Then cockroaches or other insects have tracheal systems. Through the spiracles air enter into the body, then there is a network of pipes, trachea, which distribute that to the whole body. Gills in arthropoda and mollusca. Lungs are used by terrestrial organs. We know that fishes uses gills, whereas reptiles, birds and mammals respire through lungs. So here in this chapter we will discuss more about human respiratory system. So when we talk about human respiratory system, we have pair of external nostril. Through the nostril air enter into the nasal chamber. Inside the nasal chamber we have mucus, we have hair for the trapping of the microorganism. That is why it is generally advised to breathe through your nose, not through your mouth, because inside the nose we have filter. वी हैव फिल्टर ऑफ हेयर, वी हैव फिल्टर ऑफ म्यूकस. तो नाक से सांस लेने पे जो हवा जो होती है वो फिल्टर हो जाती है. इसके अलावा ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे नाक में जो इस हवा को थोड़ा गर्म कर देते हैं, बिकॉज वार्म एयर कैन बी इजिली डिफ्यूज इन टू द लंग्स. सो दैट वी हैव टू लर्न. देन when we move from this nasal chamber, nasal cavity, it goes to next part which is called nasopharynx. That is a common passage of food pipe and windpipe. This means food and air. This nasopharynx is open into glottis of larynx, जिसको voice box कहते हैं. Adam apples, you can see in male it is protruding outward, that is called as Adam's apple. In female it is not protruding outward. So then it opened through the glottis into the trachea, which is another pipe. You can feel here in your throat that is a cartilaginous trachea is there. This cartilage are there in the trachea because it will not collapse when there is no air. So during swallowing what will happen, glottis is covered with epiglottis so that the food will not enter into the windpipe. Sometime it happens, so that's why we feel at that time we will cough more, coughing, and sometimes there is a difficulty in breathing also when some small particle of food enter into the windpipe. The trachea is divided into right and left primary bronchi. Then these bronchi are further divided. These bronchi are further divided into bronchioles, and bronchioles are divided or they will end into a balloon-like structure, alveoli. Millions of alveoli, गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं. तो ट्रैकियास जब एंटर हो रहा है तो ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और फिर एल्वेलाई. बहुत सारे एल्वेलाई के थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो होगा ब्लड के साथ, ब्लड कैपिलरीज के साथ, इतना हमें पता है. देन
वी हैव लंग्स विच आर कवर्ड विद ए डबल लेयर प्लूरा, जो लंग्स की मेम्ब्रेन होती है उसको प्लूरा कहते हैं, और उस मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। आप इस डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं दैट देयर आर टू लंग्स, यू कैन सी दिस एपिग्लोटिस, लैरिंक्स, ट्रैकिया जिसमें शी शेप कार्टिलेज लगी हुई है। ट्रैकिया जैसे ही एंटर हो रहा है लंग्स में वो ब्रोंकस में डिवाइड हो रहा है, ब्रोंकस से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और आप देख सकते हैं ब्रोंक्यूल्स फिर एल्वेलाई में जाते हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको पता होना चाहिए। ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होता है, ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस द एल्वेलर मेम्ब्रेन्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होता है, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन एंड रिलीज CO2। जनरली हम कहते ही हैं कि भाई ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से क्या बनती है, यस, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। देन वी कम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग में दो तरह की चीज़ें होती है, इंस्पायरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। Inspiration when we are taken oxygen rich air into the body, and expiration when we are exhaling out the carbon dioxide rich air outside the body. Inspiration can occur, अगर इंस्पायरेशन की बात करें, इफ़ द प्रेशर इन द लंग्स इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एक्स्ट्रा एयर हमारे लंग्स में रश इन कर जाएगी। सिमिलरली एक्सपायरेशन विल टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको कौन रेगुलेट करता है, मैकेनिज्म कौन करता है, डायाफ्राम, जिसके ऊपर लंग्स पड़े हुए हैं। और जो रिब्स, आपको पता है रिब्स है हमारी, स्टर्नम है बीच में, ये सारी की सारी चीज़ें, इंटरकोस्टल मसल्स, ये सब की सब चीज़ें क्या रेगुलेट करते हैं, हमारे रेस्पिरेशन को क्या करते हैं बेटा, रेगुलेट। ओके, देन सो दिस इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इट इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायाफ्राम। जैसे डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, देखिए आपके सामने यहाँ पे ये डायग्राम में भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इट इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber in the anteroposterior axis. The contraction of external intercostal muscles lift up the ribs and sternum, causing increase in the volume of thoracic chamber. thoracic chamber का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। जैसे thoracic chamber का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम की वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या होगा बच्चों, जो पल्मोनरी प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जब पल्मोनरी जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो क्या होगा, विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इन टू द लंग्स। दिस इज इंस्पायरेशन। इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन में क्या होगा, रिलैक्सेशन, डायफ्राम फिर से रिलैक्स हो जाएगा, इंटरकोस्टल मसल्स दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाएंगी, और रिड्यूसेस द थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो प्रेशर है वो बढ़ेगा कि घटेगा, यस, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से बाहर चली जाएगी एयर। ऑन एन एवरेज एन हेल्थी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में लगभग हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आप इस डायग्राम को बहुत क्लियर कट देख सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया है। आप देख सकते हैं कि डायफ्राम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का ये बढ़ रहा है, तो जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसलिए एक्स्ट्रा एयर लंग्स में रश इन हो रही है, जिसको क्या कह रहे हैं, इंस्पायरेशन। दूसरे केस में क्या हो रहा है, डायफ्राम दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। ओरिजिनल पोजीशन में आने की वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जो हवा है वो बाहर चली जाएगी। हवा कहाँ चली जाएगी, बाहर। इसी तरह रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा एग्जाम में। टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। कितनी एयर हम सांस लेने के दौरान, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं लाइक दिस, एक बार सांस लेना, एक बार सांस छोड़ना, आप करके देखिए एक बार मेरे साथ, छोड़िए। तो आप अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें 500 ml ऑफ एयर है, और अगर एक मिनट में अगर हम बात करें तो 6000 to 800 ml ऑफ एयर पर मिनट। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगली टर्म है IRV, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन। इट इज अप्रॉक्सीमेटली 2500 to 300 ml, 2500 to 300 ml। तो जोर से एक बार सांस लीजिए जरा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। देखिए जोर से सांस छोड़ दीजिए, जिसको हम कहते हैं, रामदेव जी भी कहते हैं कपाल भारती, व्हेन वी आर सेइंग दैट यू हैव टू एक्सहेल द एयर फोर्सफुली। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, even after the forceful expiration some air remain in the lungs
that is approximately 1100 ml to 1200 ml. This is residual volume. Then next one is inspiratory capacity, IC, total volume of air a person can inspire after a normal expiration. जब हम एक बार सांस छोड़ दें तो कितनी एयर हम सांस ले सकते हैं, इसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को मिला के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टीवी प्लस IRV। इसी तरह एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। एक बार जोर से सांस लीजिए नॉर्मल, और कितनी एयर आप बाहर छोड़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये भी क्या होगा, टीवी प्लस ERV। किसके बराबर होगा बेटा ये, टीवी प्लस ERV। Then functional residual capacity, volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration. Normal expiration के बाद कितनी हवा आपके lungs में रह गई, ERV plus RV. Vital capacity, the maximum volume of air a person can breathe after a forceful expiration. This include ERV, TV, IRV. Then we have total lung capacity. You can see here, I have mentioned here total lung capacity, the total volume of air accumulated in the lungs at the end of forced inspiration. This include RV, ERV, TV and IRV, or vital capacity plus residual volume. And now you have learned this, that during the corona period we have learned that these lungs are very important because this coronavirus is affecting the lungs of a person. So for keeping your lungs healthy, we should every day do pranayam. That is a simple pranayam that you know, which is called as Alom Vilom. Inhale the air from one nostril, exhale from another. Then there is another very interesting pranayam and very beneficiary pranayam, that is Brahmari. You should close your eyes, nose, and then breathe in, and then And whenever you visit a doctor or whenever you consult any doctor during this corona period, they will simply say if your lungs are working good. So when your all these capacities that I have discussed with you, and that is simple call as vital capacity of lung is good enough, then definitely you are healthy. And when any person got infection of these kind of virus, then definitely this lung capacity will also decrease. So for healthy lungs, we should always do pranayam in the morning. This is about the first part of the human respiratory system. In next video, we will talk about exchange of gases as well as some other things, how the transport of gases will take place, how it is controlled by nervous system, and what are the respiratory disorder that we will discuss in the next video. Hope you have understood so many terms in this video. So don't forget to like and subscribe my channel. Thank you so much.